Hello everyone. Let's start our new exercise, that is exercise 2.2. And our first question is, 2/3 of a number is 5 more than half of it. What is the number? First of all, let the number is equal to x. Let the number is equal to x. Now I am repeating again the question, that is 2/3 of a number. What does it means? 2/3 of a number means 2 upon a third of x is equal to, now again read the question, 5 more than half of it. It means 5 plus, and what is the number? X upon 2. Now first of all we will solve 2/3 of x. It means 2 by 3x is equal to 5 plus x upon 2. 2 by 3x, we will put x by 2 on the left hand side, it becomes negative, is equal to 5. Now in the next step we will take the LCM of 3 and 2, and what is the LCM? 6. 3 2 ja 6 and 2 is multiplied to 2, it becomes 4x minus 2 3 ja 6. Now this 3 is multiplied to x, it becomes 3x is equal to 5. By solving this equation, 4x minus 3x, what we get? X upon 6 is equal to 5. Now we all know that in right hand side 6 is in division, so x is equal to 5 multiplied by 6, because division is changed into multiplication on the right hand side. X is equal to 30. So our required number is equal to 30. Now come to our second question. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is the present age of Ravi? So let's start. Let the present age of Ravi is equal to x years. Now according to question, 15 years from now, it means from ago. For ago we will use minus sign, and for after we will use positive sign. 15 years after, it means x plus 15. Ravi's present age is x, so after 15 years it becomes x plus 15 is equal to, again read the question, that 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. So x plus 15 is equal to 4 times present age, and what is the present age? X. So our equation becomes x plus 15 is equal to 4x. Now in the second step, 15 is equal to, again we will use the same formula, algebraic terms on one side and constant terms in another side. So 4x, now x goes to right hand side and it becomes negative. After solving this, what we get? 15 is equal to 4x minus x, it becomes 3x, and 4x 15 upon 3. 3 1 ja 3, 3 5 ja 15. The value of x is 5. It means the present age of Ravi is 5 years. Now come to our third question. Ram has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins.
if he has in all a sum of rupees 77, how many coins of rupees 2 does he have? So let's start solving the question. Let Ram has 5 rupees coins is equal to x. Therefore, according to question, number of 2 rupees coins is equal to 3x, because 2 rupees coins are 3 times 5 rupees coins, and we have already let 5 rupees coins is equal to x. Therefore, 2 rupees coins becomes 3x. Now, according to question, 5 rupees coins means 5 multiplied by x plus 2 rupees coins means 2 multiply what we get 2 rupees coins is equal to 3x. It means 2 is multiplied to 3x, and in the question it has already given that the sum of 2 rupees coins and 5 rupees coins becomes 77, so is equal to 77. 5 multiplied by x, it becomes 5x. 2 multiplied to 3x, it becomes 6x, is equal to 77. 5x plus 6x, what we get? 11x is equal to 77. Now what is the value of x? X is equal to 77 upon 11. So by solving 77 upon 11, what we get? 11 1 j 11, 11 7 j 77. Then now what is the value of x? We get x is equal to 7. And in question, we have to find the value of 2 rupees coins, and what we let 2 rupees coins is equal to 3x. So the 2 rupees coins is equal to 3x. So 3 multiply what we get, the value of x is 7, is equal to 21 coins. Question number 4. Statement is, the sum of 3 consecutive number is 156. Find the number which is a multiple of 13 out of these numbers. तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम दिया गया है जो 156 है. हमें नंबर फाइंड आउट करना है, फिर वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इनमें से 13 का मल्टीपल हो. सबसे पहले हम करेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1, फर्स्ट नंबर को हम क्या लेंगे? इज इक्वल टू एक्स. अगेन लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2, सेकेंड नंबर हम क्या लेंगे? इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. अगेन लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3, कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 को हम क्या लेंगे? एक्स प्लस 2. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हमारी स्टेटमेंट में हमें तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो गिवन है, इन तीनों नंबर्स का सम दे रखा है 156. तो लेट स्टार्ट. एक्स प्लस सेकेंड नंबर है हमारा एक्स प्लस 1 प्लस थर्ड नंबर है हमारा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 156. सबसे पहले हम हमारे एक्स के टर्म्स को प्लस करेंगे. 1 2 एंड 3. हमारे पास कितने एक्स के टर्म आए हैं? 3x प्लस 2 और 1 को प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 3 इज इक्वल टू 156. अब हमने क्या करना है? अब हमारे पास ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन बन चुकी है और हम इसको सॉल्व करेंगे. तो 3x इज इक्वल टू 156 माइनस 3. तो हमारे पास क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू 153, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 103 अपॉन में 3. 3 अपॉन में क्यों आया? क्योंकि LHS की साइड 3 हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, तो RHS की साइड लेके आएंगे तो वो डिवीज़न में आ जाएगा. अब हम इसको रिड्यूस करेंगे. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? 51. x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 51. तो अब हम क्या करेंगे? हम एक एक करके हमारे सारे नंबर्स निकालेंगे. हमारा फर्स्ट नंबर आ चुका है, तो हमारा फर्स्ट नंबर 1 क्या आया? कॉन्जिक्यूटिव नंबर आया हमारा 51. अब हमारा सेकंड नंबर हमने क्या लिया था? x प्लस 1 लिया था,
तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 51, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गया 52। इसी तरह हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 क्या है, x + 2 हमने लिया था, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 51, प्लस में 2 ऐड करेंगे = 53। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आया है 51, सेकंड नंबर आया है 52 एंड थर्ड नंबर आया है 53। तो 13 की टेबल में 13 का मल्टीपल कौन सा है हमारा 52। तो आवर आंसर इज, हम इसमें क्या लिखेंगे कि 52 इज द नंबर विच इज multiple of 13, multiple of 13. Now to come to question number 5. Question number 5 is divide 63 into 2 parts such that one part is 2/7 of the other. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 63 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट का 2/7 हो। तो अगर हम इसका एक पार्ट x लेते हैं तो सेकंड पार्ट इसका 2/7x हो गया। तो लेट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। लेट द वन पार्ट इज इक्वल टू x, लेट द अदर पार्ट इज इक्वल टू 2/7x according to question x plus 2/7x इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर हमारे पास क्या है 63 है, यहाँ से हम x के नीचे 1 डिनोमिनेटर लगाएंगे, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 1 7 जा 7, 7 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 7, प्लस में 7 1 जा 7 होता है और 1 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 63। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। इक्वेशन हमारे पास सिंपल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 7x + 2x इट बिकम्स 9x अपॉन में 7 इज इक्वल टू 63। जो 7 हमारा LHS साइड में वो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9x इज इक्वल टू 63 इंटू में 7। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 7 और जो 9 हमारा LHS में मल्टीप्लिकेशन में था वो आ जाएगा डिवीज़न में। अब 9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 49। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 49। तो हमें इसको सॉल्व करना था, तो फर्स्ट पार्ट आ गया है हमारा 49, x एक पार्ट हमारे पास क्या आया है 49। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, तो सेकंड पार्ट क्या था 2/7x था, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 2/7 इंटू एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 49 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 14। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ करेक्ट आई है या नहीं, क्योंकि एक बार हमारे पास एक पार्ट हमारे पास 1 पार्ट आया है हमारे पास 49 और इसका सेकंड पार्ट हमारे पास आया है, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 14। और जैसे क्वेश्चन में उसने हमें बोला था कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 63, तो हम इसको देख भी सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। 49 में अगर आप 14 ऐड करते हो तो आपका आंसर आ रहा है 63। इट मीन्स हमारी दोनों की दोनों वैल्यू, दोनों पार्ट हमारे ठीक आए, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा 49 होगा और सेकेंड पार्ट उसका 14 होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट इज find a number whose fifth part increase by 30 is equal to its fourth part decrease by 30। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक नंबर है जिसका फिफ्थ पार्ट, यानी नंबर को मैक्स मानेंगे तो उसका फिफ्थ पार्ट इंक्रीज हुआ है 30 से, वो बराबर है उसी नंबर का फोर्थ पार्ट जो डिक्रीज हुआ है 30 से। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि फिफ्थ पार्ट इट मीन्स x/5। इंक्रीज में हम क्या करते हैं प्लस, कितना इंक्रीज हुआ है 30, किसके बराबर है इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट यानी x/4।
अब हमारा पार्ट क्या हुआ है, ये कितना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज के लिए -30। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS RHS साइड में जो x वाले टर्म्स है यानी x/5 है और x/4 है, इन दोनों को हम LHS साइड रखेंगे। x/5 ऑलरेडी है, जब x/4 इस तरफ आएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू -30 ऑलरेडी है RHS में, और LHS से जब 30 जाएगा तो वो भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20 हमारे पास। 5 4 जा 20, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4x माइनस 4 5 जा 20, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू RHS में 30 का सम होगा 60 हो जाएगा, बट साइन हमारा माइनस का रहेगा। अब LHS में सोल्व करेंगे तो -5x में से जब 4x जाएगा तो हमारे पास बचेगा -x अपॉन में 20 इज इक्वल टू -60। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, जो x इज इक्वल टू 60, 20 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x और 60 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1200। तो इट मीन्स हमारा जो नंबर है वो क्या था, नंबर इज 1200। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक लेडी बैंक में गई है, उसके पास चेक है 1 लाख रुपए का, और उसने कैशियर को बोला है कि उसे सिर्फ नोट में करेंसी में 500 के नोट चाहिए और 2000 के। टोटल करेंसी बैंक ने उसे 125 दी है। तो हमें क्वेश्चन में ये निकालना है कि हमारे पास कितनी करेंसी होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे लेट रुपी 500 नोट इज इक्वल टू x, सेम लेट रुपी 2000 नोट इज इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में पहले ही बोला है कि उसे टोटल कितने नोट मिले हैं, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इज इक्वल टू 125। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 125 माइनस वाई। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 500 रुपीज़ के नोट, और 500 रुपीज़ के नोट को हमने क्या माना है, x, तो 500 मल्टीप्लाई टू x प्लस 2000 की करेंसी के नोट्स और उसको हमने क्या माना है, y, तो मल्टीप्लाई टू y इज इक्वल टू 1 लाख। अब 500 को x से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 500x प्लस में 2000y इज इक्वल टू 1 लाख। अब सेम दोनों ही इक्वेशन से दोनों साइड से हम क्या करेंगे, हम 500 को कॉमन निकाल लेंगे। इधर से 500 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस में 4y इज इक्वल टू 1 लाख। अब जो हमारे पास 500 जो हमने कॉमन निकाला है वो दूसरी साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन में 500। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 200। तो यानी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 200। जैसे हमने ऊपर अभी पहले सोल्व किया था कि हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, हमारे पास x की वैल्यू हमने सोल्व करने के बाद में क्या निकाली थी, 125 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम x की जगह पे वही वैल्यू पुट करेंगे, 125 माइनस वाई प्लस में 4y इज इक्वल टू 200। अब 4y में से y जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3y इज इक्वल टू 200, और जो ये 125 था ये हमारा RHS साइड में आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा हमारे पास, 3y इज इक्वल टू 75। और अगेन इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो y इज इक्वल टू 25। इट मीन्स हमारे पास y यानी 2000। अब पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन थी ना स्टार्टिंग में, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 125।
तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू हम पुट करेंगे, y 25 इज इक्वल टू 125, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 125 माइनस 25, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100। तो व्हाट डज इट मीन्स कि हमारे पास जो 500 रुपीज़ के नोट होंगे वो आ जाएंगे, 500 रुपीज़ के नोट हमारे पास होंगे 500 रुपी नोट इज इक्वल टू कितने नोट हो जाएंगे हमारे पास 100, एंड 2000 रुपी नोट इज इक्वल टू 25। दैट्स इट। हमने यहाँ पे 500 रुपी के नोट भी निकाल लिए हैं और 2000 रुपीज़ के नोट भी निकाल लिए हैं। कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द स्टेटमेंट। The sum of digits of a 2-digit number is 6. On reversing its digit, the number is 18 less than the original number. Find the number. क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका अगर हम दोनों डिजिट्स का सम करते हैं तो हमारे पास 6 आएगा। जब हम उसके डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो वो नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर से 18 कम होगा और हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट one's digit is equal to x, let tenth digit is equal to y। therefore ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, हमने 10th डिजिट पे y को रखा है तो हम 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 10y, प्लस में 1st डिजिट पे हमारा नंबर क्या है x, तो ओरिजिनल नंबर हो गया है हमारा 10y प्लस x। अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये जो डिजिट्स है ऊपर x और y, यानी x प्लस में y, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 6। इसको हम अपने फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। ऑन रिवर्सिंग हमें क्या करना है, डिजिट्स को रिवर्स कर लेना है। तो ऑन रिवर्सिंग, जब हम रिवर्स करेंगे, जब हम रिवर्सिंग करेंगे, अब हमारा जो नंबर होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 2x, इट बिकम्स 10x, प्लस में अब की बार 1 प्लेस में हमारा y आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में ये हो गया हमारा न्यू नंबर, क्या हुआ है, ये हमारा न्यू नंबर है इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब उसने क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि जो नया नंबर आया है, इट मीन्स हमारा ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस x, अगर उसमें से हम 18 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो इक्वल टू होगा जो हमारा न्यू नंबर आया उसके, यानी 10x प्लस वाई। हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन गई है। अब हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन बनी है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 10y प्लस एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, क्योंकि लेस है इसलिए हमने 18 लेस किया है। अब हमारी टर्म्स को हम एक साइड में करेंगे, 10y ऑलरेडी है, जब y उधर से RHS से आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस x हमारे पास है 10x, जब हमारा RHS से आएगा तो वो भी माइनस का 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 हमारा LH से RHS जाएगा तो वो प्लस का 18 हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का था। 10y में से 10y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 9y आएगा। सेम ऐसे ही 10x में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 9x आएगा, इज इक्वल टू 18। अब हमें क्या दिख रहा है, दोनों ही इक्वेशन में x हमारे पास y भी 9 है और x भी 9 है, तो इन दोनों में से हम 9 को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 9 कॉमन आने के बाद y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। मैंने आपको अपनी पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि जब हम कोई भी चीज़ हमारे मल्टीप्लिकेशन में होती है तो हम उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो किस में हो जाती है, डिवीज़न में। तो इट मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 अपॉन में 9। हम इसको रिड्यूस करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी y माइनस में x इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम हमारी y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 2 प्लस में x। अब जो ये हमारी वैल्यू आई है, हम इस वैल्यू को, जो हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पे y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x रहेगा प्लस 2 प्लस में x इज इक्वल टू 6।
अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 6 एंड 2x इज इक्वल टू 6, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा -2। अब हम इक्वेशन को और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा और x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 2, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी। अब हमने क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन हमने पहले ली थी, क्या इक्वेशन ली हुई थी हमने, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की जगह पे y रहेगा, माइनस x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है तो वो 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 2, तो y इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास x की भी वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें अपना ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। और हमने अपना ओरिजिनल नंबर क्या लिया था, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, आपने क्या लेट किया था, इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। इट मीन्स 10 y की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, प्लस में x की वैल्यू क्या थी आपकी 2, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस में 2 इज इक्वल टू 42। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 42। नाउ कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट इज the sum of digit of a 2-digit number is 9. On reversing its digit, the new number obtained is 45 more than the original number. Find the number. इस क्वेश्चन में हमें सेम यही बोला है कि जो दो डिजिट है यानी 1s डिजिट और 10s डिजिट दोनों का ही सम जब हम करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। और जब हम अपनी वैल्यूज़ को रिवर्स कर देते हैं यानी हम 1s की जगह पे 10s लिखेंगे, 10s की जगह पे 1s लिखेंगे, तो जो नया नंबर आएगा वो ओरिजिनल नंबर से 45 ज़्यादा होगा और हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग अवर क्वेश्चन। सबसे पहले हम सेम रूल अटेम्प्ट करेंगे, लेट 1s डिजिट is equal to x, same let 10s digit is equal to y according to question। सेम उसने क्या बोला है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने सिंपल बोला था हमें कि सम ऑफ डिजिट्स यानी x हमारी 1s डिजिट है, y हमारी 10s डिजिट है इज इक्वल टू 9। हम इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना के चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले अपना ओरिजिनल नंबर निकालेंगे। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, सेम हमारे पास 10s डिजिट पे क्या है y है, तो इट बिकम्स 10y प्लस x। ये हो गया हमारे पास ओरिजिनल नंबर। अब हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हम अपनी इक्वेशन को रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ऑन रिवर्सिंग डिजिट, रिवर्सिंग डिजिट करने के बाद में जो हमारे पास न्यू नंबर आएगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने 10y प्लस एक्स लिया था, इस बार हम लेंगे 10x प्लस वाई, यानी x y की जगह पे आ जाएगा और y x की जगह पे आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन हम यही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि जो हमारा नया नंबर आया है यानी 10x प्लस में y इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है 10y प्लस x, यानी जो हमारा ओरिजिनल नंबर है प्लस में वो कितना है 45 है। यानी न्यू नंबर कब बराबर होगा, जब हम अपने ओरिजिनल नंबर में 45 प्लस करते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, x और y की टर्म्स को LHS में लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी 10x, जब x इस तरफ आएगा वो माइनस का हो जाएगा, प्लस y ऑलरेडी है, 10y जब RHS से आएगा वो भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 45। अब हम सॉल्व करेंगे, 10x में से x जाएगा तो हमारे पास 9x बचेगा, सेम 10y में से y जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा हमारे पास, इज इक्वल टू 45। अब सेम हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला 9 कॉमन निकालेंगे। तो 9 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता है वो दूसरी साइड में जाकर डिवीजन में हो जाता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 इज डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, यानी यहाँ से हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया है 5। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इसी सेम इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x
इज इक्वल टू 5 प्लस में y, यानी हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और जो हमने हमारे पास पहले हमने क्या किया था, x की जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसमें हम इस वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हम इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 5 प्लस में y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सेम 2y इज इक्वल टू 9, 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 2, y इज इक्वल टू 2। अब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी हमारी, जो इक्वेशन हमने पुट की थी, हम वहाँ से क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, x इज इक्वल टू हमने लिया था ना 5 प्लस में y, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 5 प्लस में y की वैल्यू आपने अभी निकाली है 2y है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू क्या आ गई है 7। अब सिंपल हमने कुछ नहीं करना है, हमें अपने इक्वेशन को, जो हमें ओरिजिनल नंबर की जो इक्वेशन थी, सिर्फ हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने ओरिजिनल नंबर क्या लेट किया था, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x। इट मीन्स 10 सेम, y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, प्लस में x की वैल्यू हमारे पास 7 आई है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 27। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड द स्टेटमेंट इज the numerator of a fraction is less than the denominator. If 1 is added to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 1 upon 2. तो find the fraction. क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 6 लेस है। अगर हम न्यूमरेटर में भी 1 ऐड करें, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करेंगे, तो हमारी फ्रैक्शन 1 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारी फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। लेट, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से 6 माइनस है, इट मीन्स x माइनस 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है स्टेटमेंट में, हमें ये बोला है कि जो न्यूमरेटर है हमारा, न्यूमरेटर क्या है x माइनस 6 और डिनोमिनेटर क्या है हमारा x। अगर हम इन दोनों में 1 1 प्लस करें, +1 अबाव एंड +1 बिलो इज इक्वल टू, हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 1 अपॉन 2। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों साइड में फ्रैक्शन में इक्वेशन आई है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से क्या होगा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में 2 से ये होल इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस 6 प्लस 1, और जब इज इक्वल टू RHS में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x प्लस 1 आएगा। अब हम पहले 2 इंटू में अंदर सोल्व करेंगे, x 6 हमारे पास माइनस का है, 1 हमारे पास प्लस का है, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास -5 आएगा इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 2x, माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 10 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हमें सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना है कि x के टर्म्स को हमें एक साइड कर लेना है और नंबर कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ। तो हम LHS में x के टर्म्स को करेंगे, 2x ऑलरेडी है, जब x हमारा RHS से आएगा वो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी है RHS में, जब LHS से 10 जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास x बचेगा इज इक्वल टू 11। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है 11। तो इट मीन्स आपने डिनोमिनेटर को क्या माना था, डिनोमिनेटर को आपने x माना था ना, तो इट मीन्स डिनोमिनेटर आपका आ गया है 11। सेम न्यूमरेटर आपका क्या होगा, n इज इक्वल टू, n रिप्रेजेंट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपने लिया था x माइनस 6, x की जगह पे आप 11 पुट करेंगे, 11 में से जब हम 6 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 5। इट मीन्स हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी, हमारी फ्रैक्शन जो आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर
अपॉन में डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है आपके पास 5 और डिनोमिनेटर है आपके पास 11, तो इट मीन्स आपके पास फ्रैक्शन क्या आई है 5/11।